in the midst of a Lenten message series, Jesus' journey to the cross. और इस समय हम उपवास की इस संदेशों की श्रृंखला में हैं। I'm reminded of a statement made by Oprah Winfrey. और मुझे याद आता है ओपरा विनफ्री के द्वारा एक वाक्य कहा गया। She said, "I don't want anyone who doesn't want me." वो कहती है कि मैं किसी ऐसे जन को नहीं चाहती जो मुझे नहीं चाहता। Now, there are many people who believe in the gospel of Oprah Winfrey, और बहुत से लोग हैं जो ओपरा के गॉस्पेल पर विश्वास करते हैं, but I don't necessarily agree with her in that statement. पर मैं उसके इस वाक्य से सहमत नहीं हूँ। I don't want anyone who doesn't want me. उसका यह कहना कि मैं किसी को नहीं चाहती जो मुझे नहीं चाहता। Well, then it will be hard to live, and we may have to all go and live somewhere in an island or something. और ऐसा करने से ये कठिन हो सकता हमें किसी टापू पे जाकर रहना पड़े। Because not many people like me, not many people would like you. क्योंकि बहुत से लोग मुझे नहीं पसंद करते, हो सकता है बहुत से लोग आपको भी ना पसंद करते हो। There is no doubt, don't get me wrong, there is no doubt that rejection or not being liked or welcomed really causes a lot of acute pain. और मुझे आप गलत ना समझें, ये ऐसा होने से काफ़ी दर्द महसूस होता है। It actually leaves a lot of lingering wounds in our lives. And it's hard to go on in our lives with those wounds after we receive them after rejection. और जब हमको स्वीकार नहीं किया जाता है तो हमें कई घाव लग जाते हैं और वो इतने गहरे होते हैं कि उससे निकलना मुश्किल होता है। Some of those wounds by the rejection, और ऐसे घाव जो हमें अस्वीकार करने के कारण आते हैं, they get lodged deep into our memories. वो हमारी याददाश्त में बहुत गहरी तरह से रह जाते हैं, To the extent that they alter our life and our perspective on our life. और यहाँ तक कि वो हमारे जीवन को, हमारे दृष्टिकोण को बदल देते हैं। They alter the reality of how we see ourselves and how we see others. और वो हमारे दृष्टिकोण को कि हम अपने आप को और दूसरे को कैसे देखते हैं उसको भी परिवर्तित They कर change देते हैं। our behavior. वो हमारे बिहेवियर को भी बदल देते हैं। So, have you ever been rejected, my dear friends? मेरे मित्रों, क्या आप कभी अस्वीकार किए गए? I'm pretty sure, yes, you have been. और मैं जानता हूँ कि हो सकता है, ज़रूरी है कि आप में से कई लोग ऐसा महसूस किए होंगे। If you have ever been rejected by anyone in your life, यदि आप अपने जीवन में कभी किसी के द्वारा अस्वीकार किए गए, then you are actually on a very prominent list of people who have been rejected. तो शायद आप उस एक अच्छी जो एक लिस्ट है उसमें आप शामिल हैं। Even Oprah Winfrey, whose quote we began with, यहाँ तक कि ओपरा विनफ्री जिसके कहने के अनुसार हमने शुरू किया, Thomas Edison, थॉमस एडिसन भी, Einstein, भी, Bill Gates, बिल गेट्स, all of these great people had been rejected once in their lifetime. सभी ये लोग जिनका नाम लिया गया, ये भी अपने जीवन में कभी ना कभी इनका तिरस्कार हुआ है। So in this Lenten season, इसलिए इस उपवास के समय में I asked this question, what would Jesus do or how would he respond to rejection? तो मैं आपके सामने एक सवाल को रखता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस सवाल का कैसे जवाब देंगे। Is there anything in the gospel that can inform us as to how we should respond to rejection in our lives? क्या सुसमाचार में कोई ऐसी बात है जो हमारी मदद करेगी कि हम ऐसे समय में कैसे जवाब दें? Does Jesus really know the pain and the agony of rejection? क्या प्रभु यीशु मसीह उस दर्द को जानते हैं कि कैसे अस्वीकार किया जाता है? I bet he does. और मुझे पूरा मालूम है कि उसको मालूम है, More than anybody else. किसी से भी ज्यादा। So in our text today, I want you to turn to Luke's Gospel, chapter 9 and verses 51 to 56. इसलिए आज हम इसको वचन में देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 51 से 56 तक। Anybody wants to read whatever is on the screen or in your Bibles? Thank you. So as we started last week,
धन्यवाद आपको पढ़ने के लिए। जैसा हमने पिछले हफ्ते इस संदेश को शुरू किया था, Jesus is on his last journey to Jerusalem. प्रभु यीशु मसीह अपनी उस अंतिम यात्रा को जो यरूशलेम की है उसमें है, And so he has already predicted about his death. He knew perfectly well how he will die and how people will treat him. और उन्होंने पहले से इस बात को बताया कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा जब वो यरूशलेम में जाएंगे। But in our text today from Luke 9, परंतु आज जो हम लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय से देखेंगे, on his journey to Jerusalem, उसकी यात्रा में जो वो यरूशलेम की तरफ कर रहे हैं, Jesus decides to go to Samaria. प्रभु यीशु मसीह निर्णय लेते हैं कि वो समारिया से होकर जाएंगे। There he is rejected, he is not welcome. वहाँ उनका स्वागत नहीं होता और उनको तिरस्कार किया जाता। So how does he respond to that rejection? तो प्रभु यीशु मसीह इस तिरस्कार का कैसे जवाब देगा? And we will get a few insights from Luke's account of Jesus' rejection in Samaria. और हमको लूका के इस अध्याय में इस संदेश से हमको आज समझ में आएगा। So on his way to Jerusalem, इसलिए यरूशलेम के रास्ते में why did Jesus choose to go through Samaria? प्रभु यीशु मसीह ने क्यों अच्छा जाना कि वो सामरिया से होकर जाएं? Well, my friends, before he was rejected at Samaria, मेरे मित्रों, इससे पहले कि वो सामरिया में तिरस्कृत किए जाते, in the Gospels, सुसमाचार में we see that Jesus was no stranger to rejection. हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कोई अनहोने व्यक्ति नहीं थे रिजेक्शन के प्रति। In Nazareth, in his own family, he was rejected by his own family. They didn't believe until the later time that he was the Messiah. और नासरत में उनके अपने परिवार वालों ने उसको स्वीकार नहीं किया। Then in Mark's Gospel, chapter 6, और मरकुस रचित सुसमाचार के 6 अध्याय में he was preaching with passion and healing and doing all kinds of miracles. और प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, चंगाइयाँ दे रहे थे, अद्भुत कार्य कर रहे थे। But people rejected him there also in Nazareth among his own people. और अपने ही लोगों के बीच में लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। If you read Mark's Gospel, chapter 6, verses 1 through 6, और यदि आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 6 1 से 6 में, please see there, what does it say? Anybody wants to read Mark's Gospel, chapter 6, verses 1 through 6? वहां से निकलकर वो अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सबत के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गईं? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से होते हैं? क्या ये वही बड़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें हमारे यहाँ बीच में नहीं है रहती? इसलिए उन्होंने इसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। So Jesus was teaching with authority. प्रभु यीशु मसीह बहुत अधिकार के साथ प्रचार कर It's रहे not हैं। that they did not appreciate that. They were actually amazed to see how well Jesus taught. वो ऐसी बात नहीं कि वो पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही अचंभित थे कि किस अधिकार से यीशु शिक्षा दे रहे हैं। His teachings and his authoritative preaching उसकी शिक्षा और उसके अधिकार की तरह प्रचार करना was accompanied by signs and wonders. वो जो है वो विज्ञान और अद्भुत कार्य के द्वारा साथ में चला। It's not that they could deny those wonders, ऐसा नहीं था कि वो इस बात को मना कर सकते थे, and yet they rejected him. They got offended at him. और तब भी उन्होंने ठोकर खाई और उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। What was the problem? समस्या क्या थी? The problem was he was not one of the elites. और समस्या उनके लिए यह थी कि वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था। He was not from Jerusalem. वो यरूशलेम का नहीं था। He was not a group of the Pharisees. वो फरीसियों के समूह के भी नहीं थे। He was not a scholar. और वो कोई बहुत पढ़े लिखे भी नहीं थे। He was not from a priestly class. और वो किसी याजक के क्लास के भी नहीं He थे। was not from a high social strata. और वो बहुत समाज में बहुत ऊंचे स्तर के भी नहीं थे। He was an ordinary person like you and me. वो साधारण मनुष्य थे, मेरे और आपकी And तरह। people took offense at that. और लोग इसके द्वारा ठोकर खाए। Don't we know he is a carpenter's son? क्या हम ये नहीं जानते कि वो बढ़ई का पुत्र That's है? what they told him.
वही तो उन्होंने उससे बोला। Don't we know he's from a working class? क्या हम नहीं जानते कि ये तो साधारण क्लास के हैं? Don't we know his family members? क्या हम उसके परिवारजनों को नहीं Don't we जानते? know who his father is, who his mother is? They are nobodies. और क्या हम ये भी नहीं जानते कि उसके माँ और बाप कौन है? वो तो कुछ भी नहीं है। How can he teach us? वो हमें कैसे पढ़ा सकता है? And therefore they took offense, they rejected him in Nazareth. और इसलिए नासरत में उन्होंने ठोकर खाई और उन्होंने उसको अस्वीकार किया। Mind you, there is nothing more different today than it was in the time of Jesus. और आप याद रखें कि आज के समय में भी ये फर्क नहीं है जैसा प्रभु यीशु मसीह के समय में था। Today also people choose their churches based on different aspects. और आज भी लोग अपनी कलीसिया को चुनते हैं फर्क कारणों से। They choose to go to a church that they can claim, oh, we have such and such huge pastor who is famous not only in Canada, in the US, but all around the world. और ऐसे लोग जो हैं वो दूसरी कलीसियाओं में जाना पसंद करते हैं जहाँ का पास्टर जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध हो और अलग-अलग जगहों पे कनाडा के अलावा वो जाकर प्रचार करता है। Or some people choose some churches और कुछ लोग ऐसे चर्चेस को में जाने का निर्णय लेते where हैं they can claim, oh, we have so and so coming to our church. You know this, you know that person, they come to our church. और वो इस बात में घमंड करते हैं ये बताते हुए कि तुम उसको जानते हो वो तो हमारे चर्च में आता है। How about you? और आपके लिए कौन? You go to a small fellowship, तुम तो एक छोटी संगति में a जाते हो pastor that nobody knows about, और ऐसे पासवान के पास जिसको कोई जानता and नहीं he doesn't know anything about. उसको भी कुछ नहीं पता Oh, what is there? वहाँ क्या है। If they could consider those aspects about Jesus and reject him, then who are you and I, my dear friends? जब ऐसी बातों को लोग तिरस्कृत कर सकते हैं और यीशु को लोगों ने उसकी बातों से ठोकर खाई तो मैं और आप कौन हैं? That's why Jesus said इसलिए यीशु ने कहा to his disciples, अपने चेलों से you think you are going to be welcomed and accepted and glorified just because you are my disciples? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्या तुम सोचते हो कि तुम बहुत महिमा पाओगे क्योंकि तुम मेरे चेले हो? No, John 15 and verse 18, Jesus said, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15-18 में प्रभु if यीशु the मसीह ने world कहा, hates you, यदि संसार तुम्हें पसंद नहीं करता know that, तो तुम ये जानो, understand it fully, इस बात को पूरी तरह से that जान लो it has hated me before it hated you. कि इस दुनिया ने मुझे स्वीकार नहीं किया, मुझसे घृणा करी इससे पहले कि वो तुम्हें घृणा He करे। laid it out very clearly to his disciples. और ये बिल्कुल साफ तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बता दिया Did not hide it at all. और बिल्कुल नहीं छुपाया। I'm not going to send you into this world to become popular and famous. और मैं तुमको इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजूंगा कि तुम बहुत प्रसिद्ध बन जाओ। I am not going to send you into this world as crowd pullers, और मैं तुमको इस दुनिया में ऐसा नहीं भेजूंगा कि तुम भीड़ इकट्ठी करो, but as the ones who will be hated by people. पर ऐसे लोगों की तरह जो लोगों के द्वारा पसंद नहीं किए And the जाएंगे। reason they will hate you, और जो कारण है तुमको घृणा करने because का, they hate me first. क्योंकि वो मुझसे बैर करते थे But पहले, still I am sending you. पर फिर भी मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। See, my dear friends, मेरे मित्रों, in this world we will be hated. This is a given. और ये हमको पहले से बताया गया है कि इस दुनिया में लोग हमसे बैर रखेंगे। The problem in our culture is लेकिन हमारे संस्कृति में समस्या ये है, people don't go to church to learn the word, लोग कलीसिया में वचन सीखने नहीं जाते, to hear the word. उस शब्द को सुने। People go to churches and conferences and meetings लोग कॉन्फ्रेंस और मीटिंग में जाना पसंद करते हैं because there is so and so in that meeting. क्योंकि उसमें फलाना है। Because he or she is coming in that meeting, I will make every effort to attend that. और क्योंकि वो फलाना उस मीटिंग में आ रहा है इसलिए मैं हर एक प्रकार से कोशिश करूंगा कि मैं वहां जाऊं। But I know certain cultures today, even today, पर मैं ऐसी संस्कृतियों को जानता हूं आज भी around the world, पूरी दुनिया भर में, where it does not matter who comes to church to preach or not, people are still thronging to those small fellowships and meetings. और ऐसी जगहों पर लोग इकट्ठा होते हैं, उनके लिए कोई मतलब नहीं कि कौन आ रहा कौन जा रहा, लेकिन वो फिर भी भीड़ में और छोटी छोटी संगति में आना पसंद Not करते हैं। to hear a man like me climb up a pulpit in a suit and preach them with a flowery language, न मेरी इस तरह से नहीं कि वो मुझको देखे कि मैं अच्छे सूट बूट में हूँ,
मेरी बातों को सुने। But people travel miles and miles and miles to get together, to have fellowship and to meet with each other and to glorify God and to learn from the Word. परंतु लोग मीलों यात्रा करके कलीसिया में जाते हैं कि वो वचन को सुने, परमेश्वर का शब्द सुने, संगति करें और एक दूसरे को उत्साहित करें। Not to listen to a man who is popular, उस मनुष्य को सुनने के लिए नहीं जो बहुत प्रसिद्ध है, but to listen to the Word of God by any means through anybody. पर वो वचन, परमेश्वर का वचन किसी के द्वारा भी उन तक पहुंचे, उसको सुनने के लिए That आते हैं। is the hunger and thirst Jesus wants us in these Lenten days for the Word of God. और ऐसी भूख और प्यास प्रभु यीशु मसीह इस उपवास के समय में हमसे चाहते हैं। It doesn't matter who it comes from. ये इसका कोई मतलब नहीं कि वो किसके द्वारा आता The है। Word of God is important, परमेश्वर का शब्द, उसका वचन not जरूरी है, the messenger. भेजने वाला, The बोलने वाला नहीं। first thing we see in Jesus' journey, प्रभु यीशु मसीह की इस यात्रा में हम एक बात देखते हैं that Jesus plans to visit Samaria. कि प्रभु यीशु मसीह उपाय करते हैं जाने का समरिया में। It was not an accident. और ये कोई अकस्मात नहीं It था, is not that he just had to go through, there was no other way. और ये नहीं है कि उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं था। If he wanted, he could avoid passing through Samaria. अगर प्रभु यीशु मसीह चाहते तो वो उस रास्ते को छोड़कर दूसरी तरफ से जा सकते If थे। you look at this map, यदि आप इस नक्शे को देखें, that's Galilee in the north. That's where Jesus was from. Nazareth is in the province of Galilee. और गलील नाम के प्रदेश में जो उत्तर में, वहां से प्रभु यीशु मसीह And this is Judea in the south. And there is Jerusalem, the capital. और यहूदिया दक्षिण में है। If he wanted, he was coming down from the north to the south. और प्रभु यीशु मसीह उत्तर से दक्षिण में आ रहे He हैं। could have easily come this way and crossed over Jordan and entered Jerusalem, and many people took that route. और कई लोग ऐसा रास्ता लेते थे कि वो सामरिया ना जाएं। प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा कर सकते थे। But in Luke chapter 9 परंतु लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय and में verse 51, उसकी 51 आयत में it says, "And he called the 12." प्रभु यीशु मसीह, वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 को बुलाया। Sorry, Luke chapter 9 and verse 51. या लूका 9:51 में लिखा है, When the days drew near for him to be taken up, he set his face to go to Jerusalem. जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने को थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। And verse 52 says, और 52 आयत में लिखा है, he sent messengers ahead of him who went and entered a village of the Samaritans to make preparations for him. उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। The word in the original is angels, मूल भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो है दूत, स्वर्गदूत। but Jesus sent his disciples. परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भेजा। The word angel always does not mean angelic being or heavenly being in the Bible. और स्वर्गदूत, दूत का जब शब्द इस्तेमाल करते हैं वचन में तो उसका हमेशा ये मतलब नहीं कि जो स्वर्ग से उतरे स्वर्गदूत, Could just mean messengers. उसका केवल ये भी मतलब हो सकता है संदेशवाहक। So they come to Samaria, in one of the villages of Samaria, इसलिए उसके चेले एक गांव में आते हैं सामरिया में, and he wanted to probably stay there. और हो सकता है कि वो वहां रुकना चाहते So थे। Jesus sent them to prepare probably a place to rent or find somebody who could host Jesus. इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि वो उस जगह को तैयार करें आराम करने के लिए। And he had a big band of 12 people, traveling with him most of the time. और उनके साथ ये 12 जनों का समूह हमेशा ज्यादातर समय उनके साथ रहता So था। he wanted to plan and prepare. इसलिए वो चाहते थे कि वो योजना बनाए और And there तैयारी is करें। nothing wrong with that. और उसमें कोई गलत बात Even नहीं। though Jesus was filled with the Holy Spirit, जबकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, he still took time to plan and to prepare and to send ahead a team. तब भी वो कोशिश करते थे कि वो तैयारी करें और उपाय करें और अपनी जो उनके साथ समूह था उनका भी ध्यान So करें। on his way to Jerusalem, इसलिए उनके यरूशलेम के रास्ते में, as I said last week, जैसा मैंने पिछले हफ्ते बताया, Jesus had started his journey प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इस यात्रा को शुरू किया about 6 months ago before his death.
अपनी मृत्यु से कम 6 महीना पहले। So he probably wanted to evangelize and preach in Jerusalem because he has been in Samaria. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि वो अपने वचन को, अपने खुशखबरी को, वचन को उन लोगों तक बांटे समरिया में। But the second thing we see, और अब हम दूसरी बात देखेंगे, Jesus is not received in Samaria. हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया गया सामरिया में। Why? क्यों? So, earlier in Nazareth we saw देखेंगे कि पहले हमने नासरत में देखा, अभी he was rejected by his own people, अपने ही लोगों के द्वारा उनको स्वीकार किया not गया। because they didn't like his preaching, इसलिए नहीं क्योंकि उनके प्रचार पसंद नहीं but थे, because of who he was. पर इसलिए कि वो कौन था। An ordinary carpenter's son. एक साधारण बढ़ई का पुत्र। No, we want to hear from great people. हम जो है हम बड़े महान लोगों के द्वारा सुनना चाहते हैं। But God sends Jesus, an ordinary person like you and me, to be born in an ordinary family, bringing the extraordinary message. लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको चुना कि असाधारण भी है, हम साधारण लोग जो हैं उसके असाधारण और उसके प्रमुख वचन को लोगों तक But पहुंचाएं। when he comes to Samaria, परंतु जब वो सामरिया में आते हैं, he didn't actually had the opportunity to minister there. उनको मौका ही नहीं मिला कि वहाँ सेवा करें। वो They didn't hear him preach. उन्होंने उसको प्रचार करते भी नहीं सुना, And yet he was unwelcome in that village. और तब भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया उन्हें। They did not accept him लोगों ने उनको ग्रहण नहीं किया, because in verse 53 of Luke's Gospel, chapter 9, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 9 उसके 53 में लिखा है, it says, "But the people did not receive him because his face was set toward Jerusalem." उसमें लिखा है परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वो यरूशलेम जा रहा था। So when these disciples of Jesus came to find out if there was a place that could host Jesus, तो जब चेले इस बात को पता करने के लिए आए कि वो जगह को तैयार करें यीशु they के लिए, told him, well, it was for Jesus. उन्होंने बोला कि वो तो यीशु के लिए है। And disciples thought, oh, everybody would welcome him because he's a famous preacher who has been evangelizing and he's popular, he's healer, and he's a great teacher. और उसके चेलों ने सोचा था कि लोग उनको स्वीकार करेंगे क्योंकि ये तो बहुत चमत्कार कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। But they found out where Jesus was heading to. पर उनको ये पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह किस तरफ जा रहे They हैं। found out where he was headed to लोगों को पता पड़ा कि वो कहाँ जा रहे हैं, Jerusalem. यरूशलेम की ओर। And Jerusalem is not something that brings good memories in the minds of the Samaritans. और सामरियों के दिमाग में कोई अच्छी याददाश्त नहीं आती जब वो यरूशलेम के बारे में सोचते हैं। Why? क्यों? Because there is a long history about it. क्योंकि वहाँ एक बहुत ही लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। Our brother was sharing here that as black people, he doesn't really get ready to take a vaccine because of the long history that conjures up in his mind. और जैसे अभी हमारे भाई ने हमारे साथ बांटा था कि उनके ब्लैक होने के कारण लोग उनकी एक अच्छी याददाश्त नहीं है। Those who have been colonized, और जिनको कॉलोनाइज किया गया, those who have had bad experiences in the past. और जिनके पुराने समय में बुरे अनुभव हुए हैं। As I said earlier, they carry their wounds in their memory for a long time. और जैसे मैंने कहा कि लोग अपने दिमाग में उन घावों को बहुत समय तक रखते It was the same thing with the Samaritans. और ऐसा ही था सामरी लोगों के लिए। Now there was a religious tension between the Samaritans and the Jewish people. सामरियों और यहूदियों के बीच में एक रिलीजियस टेंशन था, But also there was a racial tension between them. लेकिन उनके बीच में एक जातिवाद का टेंशन भी था। What happened was, क्या हुआ था? centuries ago, कुछ शताब्दी पहले when the Babylonians attacked Israel जब बाबुल के लोगों ने चढ़ाई करी इस्राएल के and ऊपर, they took majority of the Jewish people into captivity into Babylon, और जब ये इस्राएली लोगों को, यहूदियों को बंदवाई बना के ले गए, there were some Jewish people who were left behind in Palestine. तो कुछ यहूदी लोग फलस्तीन में रह गए थे। And there were some captors or some of the Babylonians or the Assyrians who also came. They liked the place. They settled down there.
और कुछ लोगों को असीरियन और बेबीलोनियन जो थे उनको वो पसंद आई तो वो भी वहां ठहर गए। So those Jewish people who had been left behind, तो वो यहूदी लोग जो पीछे रह गए they intermarried with the non-Jewish people. तो उन्होंने शादी विवाह की इन गैर यहूदियों से, They had mixed race children, और उनके जो बच्चे थे वो मिक्स्ड रेस के थे and they continued in their lives. और वो अपना जीवन बिताते रहे। But when the Jewish people came back, पर जब यहूदी लोग वापस आए, you read that in the book of Nehemiah, तब आप नेहमाया की पुस्तक में as पढ़ेंगे, they were trying to rebuild their temple in Jerusalem that was destroyed, जब वो उस मंदिर को दोबारा बनाना मांग रहे थे जो तहस नहस हो गया था, these Jewish people तो ये यहूदी लोग who were left behind, जो पीछे रह गए थे they offered help. उन्होंने मदद देनी चाहिए। Well, we have been here. We know where the things are, and you guys are coming after so many years. Let us help you rebuild the temple. और वो उन लोगों की मदद करने के लिए आगे आए कि हम तो यहाँ काफी समय से हैं, हमें सब कुछ मालूम है और हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। Some Jewish people who came from the captivity of Babylon, और कुछ यहूदी लोग जो बंधुआई से बाबिलोन की बंधुआई से वापस आए, they rejected the Samaritans. उन्होंने सामरियों को तिरस्कार किया। We don't need your help. हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। You are not truly Jewish people. तुम वास्तव में यहूदी लोग नहीं हो। We are the true-blooded Jews. और हम जो है, हमारे खून जो है यहूदी है। We would not need your help. हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। Dare not even come to Jerusalem. तुम कोशिश भी मत करना यरूशलेम आने की। So snubbed by these Jewish people, ऐसी बातों के दौरान यहूदियों के द्वारा the elders of those people who were left behind, तो जो अगुवे थे उन लोगों के जो पीछे रह गए थे, they went ahead and they built their own temple in Samaria तो जो लोग वहां रह गए थे उन्होंने अपना स्वयं का एक मंदिर बना लिया on Mount Gerizim. और गेरिज़ीम पर्वत पर। These are still the ruins of the temple of the Samaritans. और ये वहां पे अभी भी उसके ruins हैं उस मंदिर के। Now there are some churches that have been built on that land, और अब उस भूमि पर कुछ कलीसियां, कुछ चर्चेस बन गए हैं। but this racial animosity and the religious feelings against each other, they still continue among the Jewish people and the Samaritans to this day. लेकिन आज के दिन तक सामरियों के बीच में और यहूदियों के बीच में जातिवाद और जो भी उनके धर्म के जो विवाद हैं वो चल रहे हैं। Now when Jesus came to one of the villages of Samaria, जब प्रभु यीशु मसीह लेकिन जब अब सामरिया के एक गांव में आए हैं, they had heard of the miracles of Jesus. I think there was nobody who did not know who Jesus was in those days. उन्होंने सबने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत कार्य सुने और प्रचार सुना। They also heard that he had claimed to be the Messiah, उन्होंने ये भी सुना कि प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा की कि वो मसीहा है, but they were offended परंतु उन्होंने ठोकर खाई because his face was set toward Jerusalem. क्योंकि उन्होंने दृढ़ निश्चय किया है और वो यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं। He was going to Jerusalem, वो यरूशलेम जा रहे हैं and he wanted to be the Messiah of the Jewish people. और वो जानते हैं कि उनको बनना है मसीहा यहूदियों के लिए। And these people were not welcome in the temple in Jerusalem. और इन लोगों को स्वीकार नहीं किया जाना था यरूशलेम So में, they rejected the Messiah who came to them. इसलिए उन्होंने उस मसीहा को अस्वीकार किया जो उनके पास आया। He was wanting to probably evangelize, to preach, to heal, to do the ministry there. और प्रभु यीशु मसीह वहां आए थे कि उनके बीच में सुसमाचार का प्रचार करें, उनको चंगाई दें। When they saw that he was going to the Jewish temple, परंतु जब उन्होंने देखा कि वो यहूदी मंदिर की तरफ जा रहे हैं that it will not be in their favor at all, और वो उनके फेवर में नहीं होगा, they resolved to have nothing to do with the Messiah. तो उन्होंने इस बात को माना कि वो किसी भी तरह से उस मसीहा को They ग्रहण नहीं did करेंगे। not welcome him. उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, They did not extend him a hand of hospitality. किसी प्रकार से उनकी मेहमान नवाजी भी नहीं करी। And we know that what happened to them then. और हमको मालूम है उनके साथ क्या हुआ वहां। But then the third thing we see, पर अब हम तीसरी बात देखते हैं, what was the disciples' response to the rejection of their guru, their teacher, the Messiah? तो हम तीसरी बात देखते हैं कि चेलों का क्या उत्तर था जब उन्होंने इस बात को देखा कि उनके मसीहा को इस प्रकार से स्वीकार किया जा रहा है। अस्वीकार किया जा रहा है. He was being rejected.
उनको अस्वीकार किया जा रहा है। In Luke chapter 9 and verse 54, और लूका रचित सुसमाचार 9 और 54 में when his disciples, James and John, and Luke specifically mentions them, okay? वचन में ये लिखा है, ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना saw it, जब उन्होंने देखा, they said, उन्होंने कहा, Lord, do you want us to tell fire to come down from heaven and consume them? हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? And there are actually some manuscripts, original manuscripts. और यहाँ कुछ मूल भाषा में कुछ मैनस्क्रिप्ट्स हैं। They add the word like Elijah did, like as Elijah did call upon fire or actually lightning from heaven and consume them. और वो इस तरह से उन्होंने बोला जैसे मूल भाषा में दिया गया है कि एलिया ने जिस प्रकार से आग को बुलाया ताकि वो भस्म कर दे। Now these are Jesus's disciples, okay? आपको मालूम है कि यीशु के शिष्य हैं ये, They are not strangers. और ये स्ट्रेंजर They had been with Jesus for about 3 years. और ये यीशु के साथ रहे करीब 3 साल से। They know who he is. उसको मालूम है कि ये यीशु कौन But है। the rejection of their guru actually really pained them. लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके गुरु को अस्वीकार किया They गया were है, so disappointed वो बहुत दुखी हो गए that they became really zealous and wanted the fire to come down and come and burn these Samaritans who would have the audacity to reject the Messiah. तो उनके अंदर एक धुन समा गई कि किसी तरह से आग को भेजकर उनको भस्म कर दें, कि कैसे उन्होंने उनके मसीहा को किस तरह से तिरस्कार किया। Their zeal was so rash, और उनकी धुन इतनी ज्यादा थी, but their spirit was so bad लेकिन उनकी आत्मा जो थी वो अच्छी नहीं that थी। they wanted to justify it by becoming Elijahs. वो इस बात को बताना चाहते थे कि वो एलिया बनना चाहते हैं। This reaction would have been characteristics of the Jewish people against any Samaritan. और इस तरह का स्वभाव ये यहूदियों के लिए हो सकता था किसी भी समरियों के प्रति, Because of the cultural differences, because of the racial differences. जातिवाद के कारण और किसी प्रकार से संस्कृति में फर्क होने के कारण That they were ready to become Elijahs. वो इस तैयार थे कि वो एलिया बन जाएं, Again and again and again. बार बार और बार बार, And wanted to pray to bring even lightning upon their so-called enemies, who were no enemies at all. और वो इस बात को कहना चाहते थे किसी तरह से आग और बिजली को गिरा दें उन दुश्मनों के प्रति जो कि उनके दुश्मन हैं। Jesus actually called them sons of thunder. और प्रभु यीशु मसीह उनको बोलते हैं, John and James were called by Jesus in Mark chapter 3 and verse 17. Anybody can read that if you find it? और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, जिनका नाम उसने बोअर्निगस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा। Jesus called them Boanerges, sons of thunder or lightning. प्रभु यीशु मसीह उन्हें बोअर्निगस कहते हैं अर्थात गर्जन के पुत्र। Yeah, because of their rash behavior. क्योंकि उनके बहुत ही कठोर उनका Because of their स्वभाव bad था, spirit. उनकी गलत मन था। But notice they are still disciples of Jesus. They are counted among the 12. और आप याद रखें वो अभी भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और वो उसके 12 में से गिने जाते Not हैं। everybody among Jesus' disciples was perfect. You know that very well. और प्रभु यीशु मसीह के चेलों में कोई भी सिद्ध नहीं था, आप सब जानते हैं। One of them turned out to be Judas. और उनमें से एक जो है वो यहूदा स्क्रूती बन They गया, were still disciples of Jesus Christ. और वो फिर भी प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। And so, my dear friends, some of us Christians act like John and James many times in our lives with our attitude and bad spirit. और हमारे बुरे मन होने के नाते कभी कभी हम यूहन्ना और याकूब की तरह बन जाते हैं। Sometimes I wonder how Christians treat other people of other races and other cultures. कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं उन लोगों से जो दूसरे धर्म के, दूसरे विश्वास के लोग हैं। Being disciples of Jesus, यीशु मसीह के चेले होने के नाते how is sometimes our attitude against people or with the people of other faiths who don't have anything in history common with us, or who are like Samaritans who worship differently,
who behave differently, who look differently. और हमारा स्वभाव उनके प्रति कैसा है जो हमसे हमारे जैसे नहीं दिखते हैं, या हमारे जैसे वो आराधना भी नहीं करते, या हमारा जैसा उनका धर्म भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है। How characteristic of James and John some Christians are today. और कैसे यूहन्ना और याकूब की तरह जो हम अपने आप को मसीह कहते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है Toward those who come from other cultures उनके प्रति जो दूसरी संस्कृति से आते हैं, or who look different from us, या वो हमसे भिन्न दिखते हैं, or who look or worship differently than us, या वो हमसे भिन्न तरीके से वो आराधना करते or हैं, maybe those who are in a mixed marriage, या उनके साथ जो किसी तरह से मिक्स्ड मैरिज में or हैं, who have people or children from a hybrid marriage or mixed marriage. या जिनके बच्चे हैं मिक्स मैरिज के द्वारा हुए। This Lenten season इस उपवास के समय में is for us Christians वो हमारे मसीह लोगों के लिए है to pause and ponder and check our attitude, my dear friends. कि हम अपने आप को रोक के सोच के अपने आप पर इसमें ध्यान मनन करें। And when we do that, और जब हम ऐसा करते हैं we should turn to Jesus, fourthly. तो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ना है। How did Jesus respond to the rejection? तो प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उत्तर दिया इस अस्वीकार, And how did Jesus respond to his own apostles with that attitude? और प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों का उस स्वभाव के कारण कैसे जवाब दिया। In verse 55 of 9th chapter of Luke, लूका के 9 अध्याय के उसके 55 आयत में and it says, but he turned, Jesus turned यीशु मुड़े and rebuked them, और उन्हें डांटा, not the Samaritans, सामरियों को नहीं but John and James. परंतु याकूब और यूहन्ना को। And in some manuscripts in the original, it is added, मूल भाषा में कहीं पे इसको जोड़ा गया। and Jesus said, यीशु ने कहा, you do not know what manner of spirit you are of. तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, For the Son of Man came not to destroy people's lives, but to save them. क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। He's telling about those who have rejected the Messiah, वो उनके विषय में बात कर रहे हैं जिन्होंने उसको तिरस्कार किया, those who are racially different than him, जो जातिवाद में भिन्न है, those who are culturally different from him, जो उसकी संस्कृति से बाहर के हैं, whose worship and temple is different from the Jewish people. जिनकी आराधना और मंदिर यरूशलेम मंदिर से भिन्न है। Even to them Jesus says उनसे भी यीशु कहते हैं that he has come to save them. कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं उनको बचाने आया हूँ। He has no intention of calling fire or lightning to destroy them. उसके दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं कि वो उनको नाश करे। Jesus has not come to destroy or to pray for the destruction of any faith, of any culture, of any race on this earth. प्रभु यीशु मसीह किसी भी प्रकार से नाश करने के लिए नहीं, किसी भी लोग का, किसी भी जाति का, किसी भी दूसरे धर्म के लोगों का। And if we have that spirit like the Johns or the Elijahs or that of the James, और यदि हमारे पास ऐसी आत्मा है जैसे याकूब, यूहन्ना और एलिया की है, my dear friends, it is time for us Christians तो मेरे मित्रों ये समय है हम मसीह लोगों के during this Lenten journey as we meditate upon the word जबकि हम वचन में चिंतन मनन करते हैं इस उपवास के समय that में we repent कि हम पश्चाताप of करें this rash spirit in us, और इस बुरी आत्मा this जो हमारे bad में- attitude in our lives, हमारे जीवन में जो बुरा व्यवहार है that we repent of this कि हम उसके द्वारा पश्चाताप and करें ask the blood of Jesus Christ to cleanse us, और प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करे and ask with Paul और हम पौलुस के साथ भी बोलें to have the mind of Jesus Christ in us, कि हमारे अंदर मसीह यीशु का मन हो, that we would say to everybody, ताकि हम दूसरों से ऐसा कहें even if they are different from us, चाहे वो हमसे भिन्न कोई ना हो, that we have the message of love toward you, कि हमारे पास उनके लिए संदेश है that we प्रेम का, want the best for you. कि हम उनके लिए भला चाहते हैं। Friends, so we have come to this world for a purpose, that Jesus, to share the word and to share the love of Jesus, not to share the condemnation. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम इस पृथ्वी पर इसलिए आए कि हम लोगों के साथ
प्यार बांटे, ना कि किसी प्रकार से दोष लगाएं। And then the response of Jesus और फिर जो उत्तर हमें प्रभु यीशु से मिलता है includes this, वो इस बात को भी इंक्लूड that करता he है was not bitter. कि वो किसी प्रकार से कड़वाहट भी One नहीं है। rejection of the Messiah मसीहा का एक बार स्वीकार ना किया जाए does not stop him from becoming and continuing to become the Messiah for which he had come to this earth. वो किसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को रोक ही नहीं सकता मसीहा बनने के लिए, जिसके कारण वो पृथ्वी पर आया। One rejection or two rejections of Jesus, एक या दो बार तिरस्कार करना यीशु के लिए, one rejection or several rejections to the Messiahship of Jesus, कोई भी एक बार या कई बार प्रभु यीशु मसीह का अस्वीकार करना मसीह की मसीहत के लिए, does not stop him from being who he is. वो उस बात से प्रभु यीशु मसीह को रोक ही नहीं सकता कि वो कौन है। After the rejection, और तिरस्कार के बाद, either in Nazareth, चाहे वो नासरत में हो, among his own people, अपने लोगों के बीच में, or in Samaria, या फिर सामरिया में, a different people group, दूसरे लोगों के बीच में, Jesus did not allow his ego to come in between. He did not allow his flesh to come between him and the people. प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी प्रकार से अपना मनुष्यत्व बीच में नहीं आने दिया लोगों के बीच में, Because he knew for the purpose he has come and what he wanted to accomplish for God. क्योंकि वो जानता था वो क्यों आया है और वो क्या परमेश्वर पिता के लिए पूरा करने जा रहा See, है। rejection, if we take it personally and allow egos to take over, can become a very dangerous thing for us. और जब किसी प्रकार से तिरस्कार किया जाना, यदि हम उसमें अपने अपने आप को शामिल कर लेते हैं तो ये बहुत खतरनाक बात है। If we allow the people who reject us to control us, और यदि हम लोगों को ऐसा होने दें कि वो हमको कंट्रोल करें, कि हमें रिजेक्ट करें, then we don't ruin them, we ruin ourselves. तो हम उनको नहीं परेशान करते, लेकिन हम अपने आप परेशान Then we होते can हैं forget our purpose. और हम अपना उद्देश्य भी भूल We जाते forget हैं, our calling. हमारी बुलाहट भी भूल जाते We हैं, forget to be the disciples of Jesus Christ in this हम world. ये भी भूल जाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं इस दुनिया में। Jesus did not let that rejection control him. प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं होने दिया कि तिरस्कार किया जाना किसी तरह से उनको कंट्रोल करने का। Jesus did not let that rejection stop him from being the Messiah that he was. और प्रभु यीशु मसीह ने इस तिरस्कार को किसी रीति से ऐसा भी नहीं होने दिया कि वो उसको रोक दे उस मसीहत से जिसके लिए वो आया। Instead, in verse 56, बल्कि उसने 56 आयत में यूं कहा, this Luke writes very succinctly, and they went on to another village. और लूका ने बड़ी सफाई से लिखा, और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। Perhaps another village of Samaria. हो सकता है दूसरा गांव हो सामरिया में। Samaria was a province. और सामरिया जो एक प्रदेश था, There were several villages. वहाँ बहुत सारे गांव थे। If one was not welcoming, यदि एक में वो ग्रहण नहीं किए Jesus गए, decided to go to another village. यीशु ने निर्णय लिया दूसरे We गांव don't में know जाने whether का। he was accepted there or not, हमें नहीं मालूम कि वहाँ दूसरे गांव में उनको स्वीकार किया but गया it था। teaches us लेकिन हमें इससे शिक्षा मिलती that when है we are rejected, कि यदि हम तिरस्कार किए जाते we हैं have other opportunities. तो हमारे पास दूसरे अपॉर्चुनिटी है। If one people reject the gospel, यदि एक लोग सुसमाचार को नहीं पसंद one करते, people reject the Messiah, यदि कुछ लोग मसीहा को नहीं स्वीकार there करते, are other people ready to accept him. तो यहाँ दूसरे लोग हैं अवसर पाने के लिए कि उसको स्वीकार करें। See, in the gospel, और यदि हम सुसमाचार में देखें, if it is good news for us, यदि ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है, gospel means God loves us so much सुसमाचार का मतलब है कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता that है, he even gives us the right to reject him. वो इतना ज्यादा हमसे प्यार करता है कि वो हमें अधिकार देता है कि हम उसको किसी तरह से तिरस्कार कर सकते He हैं। doesn't force his messiahship upon anyone. प्रभु परमेश्वर किसी प्रकार से अपनी मसीहत को किसी के ऊपर लागू नहीं He करता। gives us the free will to choose him or to reject him. वो हमें पूरी तरह से एक फ्री विल देता है कि हम चाहे उसको ग्रहण करें चाहे हम उसको ना करें। It's up to us how do we deal with the rejection. ये हमारे ऊपर है, हम तिरस्कार से कैसे व्यवहार करते We हैं। can always decide हम हमेशा निर्णय ले सकते to हैं follow the example of Jesus. कि प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण के पीछे चले। We can always decide हम ये भी निर्णय ले सकते to हैं go to another people, कि हम दूसरे लोगों के पास to जाएं, go to another village, कि हम दूसरे गांव के पास to जाएं, go to another culture, दूसरे संस्कृति में to जाएं, go to
another faith. दूसरे धर्म में जाएं। There are thousands of them still waiting to hear about the Messiah, my dear friends. और हजारों लाखों लोग हैं जो आज भी रुके हुए हैं कि वो इस मसीहा के बारे में सुने। So what do we do with people who hate the gospel? तो हम ऐसे लोगों के साथ क्या करते हैं जो हमारे सुसमाचार को नहीं पसंद We करते? don't hate them in return. हम उनको वापस में हम किसी प्रकार से उनको घृणा नहीं करते। We don't want to have bad things happen to them. और हम ये भी नहीं चाहते कि बुरी चीजें उनके लिए हों। We don't want to curse them. हम उनको शाप भी नहीं देते। We don't want to tell them to go back to wherever they came from. और हम ये भी नहीं कहते उनसे कि तुम वापस चले जाओ जहाँ से आए हो। If we see some people who are of a different nature, different color, different race, different people group, different language, और यदि आज हम देखते हैं कि लोग हमसे भिन्न हैं, हमारी भाषा से, हमारे कल्चर से, हमारी सब बातों से, different food styles, उनका खाना पीना दूसरा है, different dresses, उनके कपड़े पहनने दूसरे हैं, we don't tell them to go back to wherever they came from हम उनसे ये नहीं कहते कि तुम वापस जाओ जहाँ से आए हो, just because they don't love the Lord Jesus Christ. केवल इसलिए कि वो यीशु से प्यार नहीं If करते। they reject him, यदि वो उसको तिरस्कार करते हैं, we are nowhere commanded to hate them. हमें किसी प्रकार से आज्ञा नहीं मिली कि हम उनसे बैर रखें। We should learn from Jesus हमको प्रभु यीशु मसीह से सीखना है how to feel and how to react when we are rejected or when somebody rejects the gospel. कि हमको कैसे करना है जब हमको या सुसमाचार को तिरस्कार किया Don't जाता take है। it personally. उसको कभी आप अपने पर्सनली ना लें। And in the same way as Jesus did, और इसी प्रकार से जैसे यीशु ने किया, still love them, आप प्यार करते रहें, still pray for them, प्रार्थना करते रहें, still want their salvation, और तब भी आप कोशिश करते रहें कि आप उनके लिए उनका उद्धार चाहते हैं, still want the best for them. तभी भी उनके लिए अच्छा चाहते Because हैं, the Son of Man came not to destroy people, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि लोगों का नाश to करे, destroy cultures, उनके संस्कृति को खत्म कर to दे destroy diversity, और जो भिन्नता है उसको खत्म कर दे, but to rejoice in the diversity of people and cultures that He has created in this world. पर इस बात से आनंदित हो कि भिन्नता में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को डाला कि लोगों को फर्क तरीके से बनाया। May the Lord bless us through these words परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीष to दे become more like Jesus in these Lenten days. और इस उपवास के समय में हम और ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के समान बने, Even if we are rejected, चाहे हमारा तिरस्कार क्यों न हो, even if people reject the gospel, the Messiah. और यदि लोग इस सुसमाचार को या इस मसीहा को रिजेक्ट करें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें।